Hello and welcome to you all. So, we are here to discuss one of the components of environmental science for the UPPCS purposes, and we'll take one of the components, of course, that is called as the acid rain. हम लोग कोशिश करेंगे बाइलिंगुअल बने रहने की, क्योंकि ये पीसीएस का है। थोड़ा थोड़ा क्योंकि मीडियम हमारी इंग्लिश है ऑब्वियसली, तो सारी चीज़ें इंग्लिश में करेंगे, लेकिन बीच बीच में इन बिटवीन हम लोग हिंदी में भी चीज़ों को रखेंगे। एज फार द एसिड रेन इज कंसर्न, that suggests one thing, that it is basically an ecological event. So, it's basically an ecological event. And when there is acid rain, of course, in what way that is different to the normal rain? जब हम एसिड रेन की बात करते हैं, तो ये कैसे नॉर्मल रेन जो होती है, जो हम लोग प्राकृतिक वर्षा की बात करते हैं, तो कैसे ये नेचुरल रेन से अलग है, किस रूप में अलग है? जाहिर सी बात है, एसिड रेन का मतलब ये हुआ कि इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। So there is some acidic property or acidic properties, you can say, into the acid rain. But do you think that as far as the normal rain is concerned, that normal rain is also somewhat acidic in nature? क्या जो नॉर्मल रेन होता है उसमें भी एसिडिटी का गुण होता है क्या, या फिर वो बेसिक होता है, या फिर वो न्यूट्रल होता है? बिकॉज एज फार द वाटर इज कंसर्न, ऑफ कोर्स दैट इज सपोज टू बी न्यूट्रल ओनली। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इन व्हाट वे दिस नेचुरल रेन और नॉर्मल रेन इज एक्चुअली डिफरेंट टू द एसिड रेन। और ये दोनों डिफरेंस जब हम लोग समझ जाएंगे, तो ऑब्वियसली विल बी इन अ पोजीशन टू गो फॉर दिस सच टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इवेंट। तो फर्स्ट विल गो फॉर द नेचुरल रेन। Remember, the natural rain, on its own, the natural rain is actually neutral. So, और जब हम कहते हैं कि ये न्यूट्रल होता है, तो आप जानते हैं कि जब किसी भी चीज़ की जो कोई भी जो सब्सटेंस होता है, तो एज फार द न्यूट्रलिटी ऑफ एनी ऑफ द सब्सटेंसेज इज कंसर्न, or the acidity of any of the substances is concerned, or even basicity of any of the substances is concerned, that is depending upon one factor only, and that is called as the pH scale. एक स्केल होता है जिसके आधार पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं, और ये जो स्केल है ये बताता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, दैट इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू एज द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यानी पीएच स्केल के माध्यम से हम ये दिखलाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो एसिडिक होगा, या फिर बेसिक होगा, या फिर वो न्यूट्रल होगा। और ये जो पीएच है, इस पीएच का सीधा मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन से, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और ये जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, दरअसल ये बताता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू दैट सब्सटेंस। सो द हाइड्रोजन आयन, जिसको आप H प्लस कह सकते हैं, कंसंट्रेशन। एंड ऑन दैट बेसिस ऑफ कोर्स वन स्केल हैज बीन मेड, एक स्केल बनाया गया इसके आधार पर, एंड दैट स्केल इज एक्चुअली कॉल्ड एज द पीएच स्केल। एंड दिस स्केल सेज in three terms, we can say that when the pH value is less than 7, of course that means the substance would be acidic in nature. That also suggests that if the pH value is equal to 7, that means the substance would be neutral. And as far as the basicity is concerned, we can say that when the pH value is more than 7, that means the substance would be basic in nature. So if any substance is there whose pH value is suppose 5.6, suppose, and if another substance is there, whose pH value is suppose 6.6.
So since the second substance, which is having more pH value, which is very much close to 7, of course the acidity would be there because it is less than 7. But that acidity would be less in comparison to the first substance, which is having the pH value as 5.6. So if any substance is there which pH value is farther than 7, of course that would be much more acidic in nature. And when we talk about the normal rain, just remember one thing, that this normal rain is actually slightly acidic in nature. I told you that on its own, the normal rain is supposed to be neutral only. That means its pH value should be taken as 7. But there are certain types of events which are taking place whenever the normal rain actually enters into our atmosphere. And we'll see that in what way the chemical reactions are being taken over. And because of that those kind of reactions only, of course, the normal rain, which is supposed to be neutral, that actually turns as acidic in nature. So first we'll justify that why the normal rain is basically acidic in nature. So I'm taking over here now, but generally when this normal rain, we are not talking about the acid rain, this is pertaining to the acid rain, of course. Now we are focusing on to the normal rain. First we'll discuss about the normal rain and then only we'll go into the acid rain. So but generally when this normal rain enters into our atmosphere, because of certain reactions, atmospheric reactions, of course, certain atmospheric reactions, it turns into slightly acidic. कैसे? जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, and of course this is our atmosphere that is basically known as troposphere. You all know the lowermost sphere, and we also know that as far as Earth's atmosphere is concerned, that is troposphere is concerned, it is full of many of the particles of maybe dust particles, maybe different types of gaseous particles, maybe different types of solid particles or liquid particles. Here we are concerned about two of the gaseous particles. We all know that this atmosphere of the Earth or this troposphere is having the CO2, and at the same time this troposphere is also having the sulfur dioxide gas. Both of them are the gaseous particles, of course. So now what happens? When you say normal rain, that means we are talking about H2O molecule only. This is nothing but the dihydrogen oxide, you can say, or in simple terms or chemically we can say this is actually the protium oxide. Now, what type of chemical reactions are taking place when the normal rain, so suppose this one is the normal rain. So when this normal rain enters into the atmosphere, of course, it would react with the CO2 particles, I mean CO2 molecules you can say, and because of that reaction क्या होगा कि जब नॉर्मल रेन का जो H2O है वो जब CO2 जो एटमॉस्फेरिक CO2 है, CO2 तो रहेगा ही, हम सब जानते हैं कि CO2 स्लाइटली एसिडिक होता है, SO2 कहीं उससे ज़्यादा एसिडिक होता है. These all are the acidic gases. So when H2O enters into our atmosphere, so we are talking about the atmospheric CO2. So obviously there is a kind of chemical reaction in between the H2O molecule and that of the CO2, and that's why we can have H2CO3. This is actually called as carbonic acid. इसका मतलब साफ हुआ कि H2O जब CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो चूंकि कार्बोनिक एसिड वो बना देता है, इसलिए वो जो नॉर्मल रेन है वो अब स्लाइटली एसिडिक बन गया. गॉट इट? तो जब वो एटमॉस्फेयर में हमारा जो नॉर्मल रेन है जो इंटर करता है तो उसकी जो स्वाभाविक प्रकृति होती है, जो नेचुरल उसका कह सकते हैं कि नेचर होता है कि वो न्यूट्रल होना चाहिए, दैट हैज टर्न इनटू स्लाइटली एसिडिक बिकॉज ऑफ द
kind of reactions taking place with the CO2, and because of that, the formation of that carbonic acid, you can say. Similarly, you can go for another type of reactions also taking place when H2O combines itself with the sulfur dioxide of the atmosphere. Again, the atmospheric sulfur dioxide is there. So because of that, it produces H2SO3 because of the combination of H2O and of course SO2. So H2SO3, this is actually called as sulfurous acid, remember? Sulfurous acid. And now, because of the oxidation of this sulfurous acid into the atmosphere, it would give you H2SO4. Here it is, H2SO4. And this is very, very acidic in nature, I can tell you. So it would give you H2SO4. And in that case, of course, the acidity would be, so this is actually far more acidic gases than that of CO2. तो इसके चलते भी, यानी SO2 के साथ जब ऐसी घटनाएं घटती हैं नॉर्मल रेन के साथ केमिकल रिएक्शंस के चलते, तो उसके चलते भी एसिडिटी जो नॉर्मल रेन की होगी वो बढ़ जाएगी. तो अमूमन ये देखा गया है कि जो नॉर्मल रेन हम लोग रिसीव करते हैं फाइनली, whatever the earth receives as the normal rain, that is slightly acidic in nature. And the acidic value, or you may call the pH value for that normal rain, is almost equal to or more than 5.6. तो अगर हम नॉर्मल रेन को समराइज करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि as far as the normal rain is concerned, so the pH value for this normal rain is generally found to be more than or equal to 5.6. Got it? और अब जब हम कहते हैं कि नॉर्मल रेन का जो pH वैल्यू है वो 5.6 के आसपास है या उससे भी कहीं ज्यादा है, मे बी 5.8, मे बी 6.2, लाइक दैट, यानी ये स्लाइटली एसिडिक है. हमारे कहने का मतलब ये है कि ये ऑब्वियसली या तो 5.6 के आसपास होता है या उससे कहीं ज्यादा होता है, और जितना ही वो 7 के करीब जाएगा तो एसिडिटी उतनी ही घटती जाएगी. इसलिए हम मान के चलते हैं कि जो नॉर्मल रेन हमारा होता है वो स्लाइटली एसिडिक नेचर शो करती है. गॉट इट? लेकिन अपने आप में ये नॉर्मल रेन एसिडिक नहीं होता. ये जब हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो इंट्रेंस के साथ ही जब वो रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ या किसी और एसिडिक गैस के साथ, जैसे कि हमने कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ वो करती है रिएक्ट, उसके चलते इसमें एसिडिटी आ जाती है. लेकिन फिर भी वो एसिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि हम उसको एसिड रेन कह सकें. हम उसे नॉर्मल रेन ही कहेंगे विथ सम एसिडिक नेचर. इसका मतलब ये हुआ ना कि जो एसिड रेन की हम बात करते हैं उस एसिड रेन के लिए जो pH वैल्यू का मान होगा, सो वट एवर द pH वैल्यू इज देयर फॉर द एसिड रेन, दैट वुड श्योरली बी लेस देन दिस वैल्यू ऑफ 5.6. तो 5.6 से कहीं ना कहीं कम ही होगा उसका pH वैल्यू, तभी वो ज्यादा एसिडिक होगा, तभी उसको एसिडिक रेन के तौर पर या एसिड रेन के तौर पर हम लोग जानते हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट एज फार द एसिड रेन इज कंसर्न, which is basically an ecological event. In what way it is ecological, we'll see that one. So one thing is clear, that as far as the very nature of the acid rain is concerned, the acidity for that acid rain would surely be less than, sorry, the acidity would be more of course, but as far as the pH value for that acid rain is concerned, that is surely be less than that of the normal rain. और नॉर्मल रेन की अगर एसिडिक वैल्यू या कह सकते हैं कि pH वैल्यू 5.6 है या उससे कहीं ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एसिड रेन होगा उसका जो pH वैल्यू होगा उस 5.6 के रेंज से कहीं ना कहीं कम होगा. और ये पाया गया है. सो एज फार द एसिड रेन कंसर्न वी कैन से दैट द एसिडिटी ऑफ सच रेन would be much more than the normal rain. That is for sure. It has been found in what way? So it has been found that the pH value for the acid rain
is somewhat less than or equal to 4.5. So just look at here. It was more than or equal to 5.6 for the normal run because of those kind of atmospheric reactions. But as far as the acid rain is concerned, the pH value for that acid rain is actually either equal to or less than 4.5. So we can say that the acid rain is actually more acidic than that of the normal rain. And that's why this is called as the acid rain. Now, as far as the acid rain is concerned, before 1872, of course, the world was not knowing anything about, you may call, scientifically or chemically, we can say that anything was not known in terms of the acid rain. But in the year 1872, there was a man named as Robert Angus Smith. He was basically the alkali inspector from Britain. और वो जो alkali inspector थे ब्रिटेन के, उन्होंने 1872 में ये एस्टेब्लिश किया, इस नॉर्म्स को एस्टेब्लिश किया, इस फैक्ट को एस्टेब्लिश किया कि बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ इकोलॉजिकल इवेंट एंड देयर आर सो मेनी रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस व्हेन देयर इज अ काइंड ऑफ एसिड रेन व्हिच इज अकरिंग ओवर देयर. तो जब हम एसिड रेन की बात करते हैं तो हमने हम ये कहेंगे कि द टर्म acid rain was coined by Robert Angus Smith. ये नाम याद रखिएगा. He was basically, I told you, he was basically the British alkali inspector. और जब वो मैनचेस्टर में पोस्टेड थे, मैनचेस्टर आप जानते हैं, मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में है, और वो कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री होती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है. और इसलिए याद कीजिए हमारे यहाँ जो अहमदाबाद है उसको हम लोग मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि अहमदाबाद में भी जो कॉटन टेक्सटाइल है उसकी कई सारी मिलें हैं. एनीवे, सो ब्रिटिश एल्कली इंस्पेक्टर जो थे उन्होंने, याद रखिएगा, इसको 1872 में इस टर्म को स्टैब्लिश किया, या इस टर्म को उन्होंने क्वाइन किया. गॉट इट. अब कहता है ये जो इकोलॉजिकल इवेंट है एसिड रेन, जो हमने शुरू में ही आपको कहा, ये किस रूप में होती है और इसमें जो एसिडिटी का जो एक प्रॉपर्टी आता है, गुण आता है, वो एसिडिटी कहाँ से आती है, क्यों आती है, कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं, द टाइप ऑफ सब्सटेंसेज व्हिच आर देयर इनटू द एसिड रेन. तो व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर देयर, बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स एसिडिक इन नेचर. तो ऐसा करते हैं कि हम लोग पहले सब्सटेंसेज को देख लेते हैं कि एसिड रेन जब कभी भी होती है तो उसमें से कौन कौन से सब्सटेंसेज हो सकते हैं. तो कुछ न्यूट्रल सब्सटेंसेज भी होते हैं, कुछ बेसिक भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली उसमें एसिडिक सब्सटेंसेज ज़्यादा होती है. तो हम पहले इसको ले रहे हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ द एसिड रेन. और जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो जो पहला कंपोनेंट इसमें होता है, याद रखिएगा, मेनली वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है. आपने देखा था कैसे बनता है वो सल्फ्यूरिक एसिड. फॉर्मूला आप जानते होंगे, दैट इज H2SO4. एंड ऑफ कोर्स, एज फार द कंट्रीब्यूशन ऑफ एसिडिटी टू द एसिड रेन इज कंसर्न, 70% acidity is because of this H2SO4 only. So that contributes almost 70% of acidity to that acid rain. The second one, of course, is the nitric acid, which comes from the nitrous oxide. So that is actually the nitric acid, and this nitric acid is basically called as HNO3. HNO3 इसका फॉर्मूला होता है और ये कंट्रीब्यूट करता है लगभग 29%. So if you look into these two gases, they are in the gaseous form. So remember, they are basically the acidic gases, very, very acidic gases. So if you look at the composition of the acid rain, 70% of acidity is because of the sulfuric acid and 29% acidity is because of the nitric acid, and that contributes almost 99% of acidity to the acid rain. And that's why जब कभी भी आपसे पूछा जाता है कि एसिड रेन के लिए दो सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल एसिडिक गैसेज है या गैसेज है वो कौन सी हैं, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू गो फॉर बोथ ऑफ दीज, आई मीन द सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑफ कोर्स द नाइट्रिक एसिड. एंड इफ एनी वन यू हैव टू पिक अप, ऑफ कोर्स देन ओनली यू कैन गो फॉर द सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सबसे ज्यादा एसिडिटी उसी के चलते संभव होती है.
लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही है, क्योंकि अदर्स भी इसमें होंगे जिनका इनसिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है एसिडिटी में, 1% ऑब्वियसली। तो अगर हम अदर्स की बात करें तो देखिए अदर्स में कौन कौन से आ सकते हैं। याद कीजिए HCl इसमें आ सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एटमॉस्फेयर में थोड़ी बड़ी मात्रा में होती है। इसमें याद रखिएगा हाइड्रोजन खुद हो सकता है। इसमें याद रखिएगा अमोनिया भी हो सकती है गैसियस रूप में, तो अमोनिया एज वेल। इसमें याद रखिएगा एल्डिहाइड भी हो सकती है, यानी फॉर्मूला उसका RCHO होता है। इसमें याद रखिएगा ईस्टर्स भी हो सकती है, दैट इज एक्चुअली RCO R डैश, दैट इज एस्टर्स। और प्राइमरली ऑफ कोर्स अगर हम बात करें, इसमें हमने जैसे देखा था कि CO2 के साथ कैसे रिएक्शन होता है नॉर्मल रेन का, तो CO2 भी हो सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये कई सारी ऐसी गैसियस कंडीशंस में सब्सटेंसेज हैं हमारी एटमॉस्फेयर में जो कि एसिड रेन का हिस्सा बनती हैं और थोड़ा बहुत वो एसिडिटी को कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन जो प्राइम इसके लिए एक्यूज्ड हैं, या कह सकते हैं जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल गैसेज है, वो दो ही एसिडिक गैसेज हैं, एक H2SO4 और दूसरा नाइट्रिक एसिड। ये तो कंपोनेंट्स की बात होगी। अब हम लोग बात करें कि एक जो दुखद स्थिति है इस एसिड रेन के साथ, वो ये है कि वो कंट्रीज जो कि सबसे ज्यादा साफ सुथरे माने जाते हैं पॉल्यूशन के लिहाज से, जहां पर पॉल्यूशन की क्वांटिटी कह दीजिए, पॉल्यूशन की अकरेंसेज कह दीजिए, पॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कह दीजिए, इंसिडेंसेज कह दीजिए, सबसे कम देखने को मिलती है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है, दिस इज अ काइंड ऑफ आयरनी यू कैन से, दैट दोज कंट्रीज व्हिच आर सपोज्ड टू बी द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, ऑफ कोर्स दे आर द मेन विक्टिम ऑफ दिस एसिड रेन। यानी एसिड रेन की सबसे ज्यादा जो घटनाएं घटती है वो याद रखिएगा स्कैंडिनेवियन कंट्री में घटती हैं। और जब हम कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, मतलब हमारा साफ होता है कि वो हम स्वीडन की बात कर रहे होते हैं, नॉर्वे की बात कर रहे हैं, डेनमार्क की बात कर रहे होते हैं। और हम सब जानते हैं कि जब भी कभी कोई लिस्ट बनती है, लिस्टिंग होती है इंटरनेशनल लेवल पे रिगार्डिंग पॉल्यूशन, सो दीज आर द कंट्रीज व्हिच एक्चुअली कम फर्स्ट, यानी वो टॉप मोस्ट कंट्रीज होती है साफ सुथरी कंट्री की अगर बात करें उस कंडीशन में। लेकिन एसिड रेन की घटनाएं सबसे ज्यादा इन्हीं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में देखी जाती है। ऐसा क्यों होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे जितना हम लोग के पास समय है थोड़ा सा। और दूसरा ये कि इसके बाद जो अकरेंसेज होती है वो गल्फ कंट्रीज में देखी गई है। गल्फ कंट्रीज में कहाँ? इराक हो गया, ओमान हो गया, कुवैत हो गया। कुछ जो एसिडेंट की घटनाएं होती हैं वो सेंट्रल यूरोप में भी देखी गई है। सेंट्रल यूरोप की जब हम बात करते हैं मतलब साफ है, पोलैंड हो गया, हंगरी हो गई, जर्मनी हो गया, वहां पर भी लेकिन कम देखी गई है, वहां पर भी लेकिन देखी गई है। लेकिन सबसे जो कह सकते हैं कि दिक्कत की स्थिति पैदा होती है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री को लेकर होती है, जिनके यहाँ ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन होता है। सबसे ज्यादा एसिड उन्हीं को झेलनी पड़ती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी ये घटनाएं हर साल होती रही हैं। और 3 ऐसे जोन्स हैं हमारे जहां पर कि ये घटनाएं सबसे ज्यादा देखी गई है। केरल में एक जगह है कोट्टायम जिला है एक्चुअली, वहां पर होती है। सबसे पहले एक्चुअली इंडिया में वहीं पर देखी गई थी और ये बात है करीब 1998-99 के आसपास, जब पहली बार हम लोगों ने ट्रेस आउट किया, उस एसिडेंट को देखा। उसके बाद वेस्ट बंगाल में याद कीजिए एक साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट है, 24 साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट, वहां भी ये घटनाएं घटती रही हैं, पिछले कई सालों में देखी गई हैं। इलाहाबाद के पास एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, अब वो डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, पहले इलाहाबाद का ही पार्ट हुआ करता था, जिसको हम लोग अब प्रयागराज बोल रहे हैं। तो प्रयागराज के पास एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको कौशाम्बी कहते हैं, वहां भी ये घटनाएं अक्सर देखी जाती रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया अछूता है, इंडिया में भी एसिडेंट की घटनाएं होती हैं। और याद कीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी रिगार्डिंग ताजमहल, इट वॉज बिकॉज ऑफ द एसिड रेन ओनली। ताजमहल आप जानते हैं कि मार्बल का बना हुआ है, लेकिन अगर आप वाकई ताजमहल को देखें आज के डेट में, तो वो जो मार्बल का एक कलर होता है व्हाइटनेस, वो दूधिया कलर जिसको कहते हैं, मिल्की कलर, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी वहां पर। इट इज समथिंग इन बिटवीन द येलोनेस एंड ऑफ कोर्स व्हाइटनेस। ये येलोइश व्हाइट जो है कलर ताजमहल का, इट इज फेल्ट दैट इट इज बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एसिड रेन ओनली और एसिडिक इम्पैक्ट ओनली। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक रूलिंग दी कि 5 किलोमीटर के रेंज में, 5 किलोमीटर के पेरीफेरी में, उस ताजमहल के 5 किलोमीटर के पेरीफेरी में कोई भी इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, उनको शिफ्ट किया गया। नाउ इट इज ऑलमोस्ट प्रोटेक्टेड। और आप याद कीजिए जब उसी सुप्रीम कोर्ट की जो बहस वगैरह चल रही थी या रूलिंग्स आने वाली थी,
तो सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में एक टर्म का इस्तेमाल किया था जिसको कहते हैं मार्बल कैंसर। उन्होंने सरकार की आलोचना की थी और ये कहा था कि ये जो यूनिट्स आपने बैठा रखी हैं इंडस्ट्रीज की, जहाँ से गैसेज निकलती हैं, एसिडिक गैसेज निकलती हैं और वो हमारे ताजमहल को इरोड कर रही है, उसी के संदर्भ में उन्होंने मार्बल कैंसर की बात की थी। तो याद रखिएगा, मार्बल कैंसर एक्चुअली ताजमहल के डिकलराइजेशन से संदर्भित है या एसोसिएटेड है, और उसका जो मेन संदर्भ है वो यही है कि एसिड रेन के चलते या एसिडिक इम्पैक्ट के चलते हम लोगों ने ताजमहल को मार्बल कैंसर का शिकार बना। एनीवे, अब हम आते हैं कि क्यों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को सबसे ज्यादा ये झेलनी पड़ती है। क्योंकि इकोलॉजिकल इवेंट जिस तरीके से घटती है, तो ऑब्वियसली वट एवर द काइंड ऑफ इकोलॉजिकल इवेंट इज देयर एसोसिएटेड विद द एसिड रेन, वी विल सी दैट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेटिक फैक्टर्स ओनली। हवा का दबाव किधर की ओर है, बेसिकली दे आर द दे आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द एसिडिक गैसेस। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर एक चिमनी रखी हुई है जिससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, लेकिन उस गैस का बहाव, उस गैस का फ्लो किधर की ओर होगा, ये तो प्रेशर पर डिपेंड करता है ना, कि हवा का जो प्रेशर है वो किधर से किधर की ओर जा रहा है। और यदि मान लीजिए हवा का प्रेशर इधर से यानी वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, तो ऑब्वियसली इस वेस्टर्न पार्ट पर उसका इंपैक्ट नहीं होगा। इस सल्फर डाइऑक्साइड के रिलीज का जो इंपैक्ट पड़ेगा वो जाहिर सी बात है ईस्टर्न पार्ट पर पड़ेगा, या फिर थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि सदर्न पार्ट पर पड़ेगा, थोड़ा बहुत नॉर्दर्न पार्ट पर पड़ेगा, लेकिन जो बेसिक इंपैक्ट पड़ेगा या प्रोबेबल जो इंपैक्ट एरियाज होंगी वो ईस्टर्न पार्ट ही होंगी। यही चीज झेलनी पड़ती है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को। एसिडिक गैसेज एमिट कोई और कर रहा है, लेकिन क्लाइमेटिक फैक्टर्स के चलते, हवा के दबाव के चलते, जाहिर सी बात है वो जो गैसेज है, वो जो एसिडिक गैसेज है, सल्फर डाइऑक्साइड कह दीजिए, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कर दीजिए, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड कर दीजिए, ये सारी की सारी जो प्राइमरी एसिडिक गैसेज हैं, कहता है कि वो रिलीज होकर के उस हवा के दबाव के चलते उस एरियाज में पहुंच जाती है जिस लोकेशन में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। और ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, जाहिर सी बात है एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस के चलते अपने आप को 3 गैसेज में कन्वर्ट कर देती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के तौर पर, कार्बोनिक एसिड के तौर पर, नाइट्रिक एसिड के तौर पर। और ये तीनों ऐसी एसिडिक गैसेज है जो कि जो प्राइमरी एसिडिक गैसेज थी, यानी कि CO2 या N2O नाइट्रस ऑक्साइड या SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, उनसे कहीं ज्यादा एसिडिक होती हैं। और इसीलिए याद रखिएगा एसिड रेन की घटना को एक कहते हैं कि ये इट इज कॉज बिकॉज ऑफ सम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ या नाइट्रस ऑक्साइड हुआ या CO2 हुआ। और जब ये तीनों की तीनों गैसेज कन्वर्ट हो जाती हैं एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस के चलते सल्फर डाइऑक्साइड में या नाइट्रिक एसिड में या कार्बोनिक एसिड में, उसके चलते वहां पर एसिड रेन की घटना घटती है। इसलिए एसिड रेन एक ऐसी इकोलॉजिकल इवेंट है which is caused because of some sort of secondary pollutants only. Secondary pollutant in terms of H2SO4, HNO3 और you may call H2CO3. तो हम ये भी कहेंगे कि ये जो एसिड रेन है, an acid rain is caused because of some secondary pollutants. तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कौन होगा? तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हमने कहा कि ये एसिडिक गैसेज होती हैं। प्राइमरली हम बोलेंगे CO2 हो गया, SO2 हो गया और N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड गैस हो गई। और जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगी, कहता है वो इससे भी ज्यादा एसिडिक होंगी और इसलिए ये खतरनाक बना देता है एसिड रेन को। मोर एसिडिक गैसेस, they are actually from CO2 it would be H2CO3 carbonic acid, from SO2 it would be sulfuric acid H2SO4 which contributes the most as far as the acidity is concerned, and then of course HNO3 that is nitric acid. तो ये ज्यादा एसिडिक गैसेज में कन्वर्ट कर देती हैं एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस के चलते। अब ये कैसे होता है कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वहां पर सबसे ज्यादा एसिड रेन देखने को मिलती है, जबकि फैक्ट यह है कि उनके द्वारा इस तरह के गैसेज को रिलीज न के बराबर किया जाता है। ऐसा क्यों होता है उसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी फोटोकेमिस्ट्री, जाते जाते हम लोग फोटोकेमिस्ट्री की चर्चा करते हैं ताकि हम इसको समझ सकें कि आखिर एसिड रेन की घटनाएं घटती कैसे। तो हम बात कर रहे हैं फोटोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब जानते हैं जो केमिकल रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी चर्चा करेंगे।
और फोटो का मतलब होता है कि जब भी ऐसा होता है तो याद रखिएगा सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में एक गैस है जिसको ओजोन कहते हैं, और इस एसिड रेन को लाने में ओजोन की बहुत बड़ी भूमिका है। ओजोन एक कैटलिस्ट का काम करता है। जब भी सनलाइट के प्रेजेंस में ओजोन होती है तो वो एसिड रेन के लिए जो भी रिएक्शंस उसमें इन्वॉल्व होती है उसकी रेट को बढ़ाने का काम करती है। और आप जानते हैं जब केमिकल रिएक्शंस की रेट को बढ़ाई जाता है किसी भी सब्सटेंस के द्वारा, तो उस सब्सटेंस को हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। सो इन द होल प्रोसेस ऑफ एसिड रेन वी कैन से that the gas ozone which is present into the atmosphere, and because of the presence of the sunlight, of course it acts like a catalyst only। और इसलिए इस ओजोन की भूमिका ये है कि ये एक फोटोकेमिकल कैटलिस्ट की तरह व्यवहार करती है। देखेंगे कैसे। तो लेट्स गो फॉर। अब कहता है कि जब एसिड रेन होगी तो जाहिर सी बात है एसिडिक गैस निकालने के लिए कुछ न कुछ सोर्सेज होनी चाहिए। उनको हम लोग कहते हैं एमिशन सोर्सेज कहते हैं। हम लेफ्ट पार्ट से शुरू कर रहे हैं। यहां से एक हम डायग्राम या फ्लो चार्ट बना रहे हैं जिसके द्वारा हम लोग फोटोकेमिस्ट्री को समझने की संक्षिप्त में कोशिश करते हैं। यह है एमिशन सोर्सेस, एंड वी ऑल नो दैट एज पर द एमिशन सोर्सेज आर कंसर्न, these type of emission sources which are responsible for releasing the primary acidic gases, I mean CO2, SO2, N2, etc. Actually there may be of two types। एक याद कीजिए इंडस्ट्री हो सकता है, इंडस्ट्रीज के थ्रू ऐसी गैसेज आती हैं। So the first emission sources would be industries, and of course the second one would be the automobiles as well। जो हम लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं उसमें याद कीजिए बर्निंग होती है, फ्यूल जलती है, और फ्यूल के बर्निंग के बाद, फ्यूल के कंबशन के बाद बहुत सारी एसिडिक गैसेज निकलती हैं जिसमें 3 प्राइमरी हैं, CO2, SO2 और N2O। कहता है ये तीनों के दोनों जो रिसोर्सेज हैं, कह सकते हैं कि एमिशन सोर्सेज हैं, ये दरअसल उन एसिडिक गैसेज को जन्म देती हैं जिसमें हम कह सकते हैं CO2 आएगा, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड आएगा, जिसमें SO2 आएगा। प्राइमरली यही हम लेते हैं। याद कीजिए ये तीनों एसिडिक गैसेज हैं, पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और कहता है कि ये तीनों गैसेज है। अब यहां पर याद कीजिए क्लाइमेटिक फैक्टर्स इस पर इंपैक्ट डालेगा। क्लाइमेटिक फैक्टर्स का मतलब हुआ कि हवा का दबाव किधर से किधर की ओर है। तो जितने भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स संभव हैं वो इन गैसेज पर, क्योंकि ये गैसेज हैं, जाहिर सी बात है हवा का दबाव हमने जैसे कहा आपको कि वेस्ट से अगर ईस्ट की तरफ है तो जाहिर सी बात है ईस्टर्न पार्ट में एसिडिक गैसेज चली जाएंगी। तो हवा के दबाव के चलते या क्लाइमेटिक फैक्टर्स के चलते नाउ दीज गैसेज, रिमेंबर हियर दे वुड come here but in different way। किस रूप में? अब यहां पर याद कीजिए सन है, और ये सन जब एटमॉस्फेरिक जो ओजोन हमारा है, ये एटमॉस्फेयर में है ओजोन, तो ये सन जब ओजोन के साथ कंबाइन करता है अपने आप को, तो सनलाइट के प्रेजेंस में, इसलिए फोटोकेमिस्ट्री है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये ओजोन दरअसल एक कैटलिस्ट का काम करेगा। So this actually ozone is acts like a catalyst। और इसलिए याद रखिएगा ओजोन को हम लोग कहते हैं एक फोटो कैटलिस्ट का वो काम करता है। फोटो इसलिए क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में ही वो अपने आप को एक्टिवेट करता है और फिर वो रिएक्शन की रेट को बढ़ाने का काम करेगा। कौन सा रिएक्शन? तो कहता है कि ये जो CO2 बना ये यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा H2CO3 के तौर पर। हमने देखा था कैसे H2O यानी जो रेन होती है उसके साथ कैसे वो कंबाइन करता है अपने आप को। ये जो N2O होता है वो कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को HNO3 के तौर पर, और ये जो SO2 है वो अपने आप को कन्वर्ट करता है H2SO4 के तौर पर। अब कहता है कि ये तीनों के तीनों याद कीजिए दे आर मोर एसिडिक गैसेस, और ये तीनों की तीनों गैसेस जब कभी भी प्रेसिपिटेशन होती है, यहां पर रेन में और प्रेसिपिटेशन में थोड़ा सा अंतर है। रेन का मतलब हुआ नॉर्मल रेन ऑफ कोर्स, बट व्हेन यू से प्रेसिपिटेशन दैट नॉट ओनली कवर्स द नेचुरल रेन बट इट ऑल्सो कवर्स द ड्यू। इसमें ड्यू भी शामिल होगा। इसमें किसी भी फॉर्म में जो वाटर मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में मौजूद है, इसमें मॉइस्चर जो होता है वो भी इसमें इन्वॉल्व होगा। तो किसी भी फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स जिस रूप में मौजूद होता है एटमॉस्फेयर में, उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। सो विद अ काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये जो गैसेज होती हैं ये एक्चुअली डिसोल्यूशन करती हैं। डिसोल्यूशन मतलब ये इनके साथ मिल जाती हैं, रिएक्शन नहीं करती हैं।
तो जब भी मान लीजिए प्रेसिपिटेशन होता है रेन के रूप में या आइस के रूप में या फिर हेल के रूप में या फिर वो ड्यू के रूप में, तो उस प्रेसिपिटेशन के साथ ये रिएक्शन नहीं करती हैं, सिर्फ केवल उसका हिस्सा बनती हैं। और जब वो उसका हिस्सा बनेंगे तो जाहिर सी बात है एसिडिक वैल्यू बढ़ा देंगे उस चीज उस प्रेसिपिटेशन का, इसलिए इसको कहते हैं डिसोल्यूशन कहते हैं। और इस डिसोल्यूशन के चलते ये सारी के सारी गैसें जब डिसोल्यूट होती है प्रेसिपिटेशन के साथ, तो जिस रूप में ये हमारी अर्थ सरफेस पर गिरती हैं, जाहिर सी बात है एसिडिक वैल्यू उनका बढ़ेगा, उसी को हम लोग कहते हैं उसी को हम लोग बोलेंगे एसिड रेन बोलेंगे। तो नाउ द वे द प्रेसिपिटेशन इज coming onto the earth's surface or falling onto the earth's surface with these kind of gases through the process of dissolution, that would be called as the acid rain। और इसलिए जिस रूप में वो सरफेस पर गिरी वो अब एसिड रेन कहलाएंगे। अब इस एसिड रेन के कई सारे इंपैक्ट्स हो सकते हैं। एसिड रेन है तो जाहिर सी बात है जो हमारी सॉइल है उसकी एसिडिटी को बढ़ा देगा, जो हमारी वाटर है उसकी एसिडिटी को बढ़ा देगा। अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तो उसमें आप जाहिर सी बात है इनफर्टाइल हो जाता है वो लैंड, आपकी उत्पादकता घट जाएगी, प्रोडक्शन लेवल घटेगा। जाहिर सी बात है अगर वाटर मान लीजिए ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो वाटर के एसिडिक होने के चलते कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं। वाटर के एसिडिक होने के चलते सबसे पहला तो काम ये होगा कि वाटर यदि एसिडिक होता है तो जो समुद्र है उसके अंदर अगर पानी एसिडिक हो जाए तो याद कीजिए समुद्र में जो मिनरल्स होती हैं वो डिसोशिएट हो जाती है। तो समुद्री जीवों के लिए सॉल्ट्स का होना बहुत जरूरी है। सोडियम क्लोराइड चाहिए उनको, मैग्नीशियम क्लोराइड चाहिए, है ना, कैल्शियम क्लोराइड चाहिए। और जब ये क्लोराइड्स ही ये जो सॉल्ट्स हैं यही जब डिसोशिएट कर जाएंगे, Na+ बना देंगे, Cl- बना देंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स बना देंगे, तो मतलब साफ है कि मिनरल्स फिर उन जीवों को मिलेगा नहीं जो एक्वेटिक लाइफ है वहाँ पर। और जब मिनरल्स उनको नहीं मिलेगा तो उनका जो ग्रोथ होगा वो डिसरप्ट होगा। उनका ग्रोथ डिसरप्ट होना मतलब साफ है कि जो वहाँ पर इकोसिस्टम क्रिएट हुई है उस इकोसिस्टम का जो बैलेंस होगा वो बिगड़ेगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि जो हमारा ओशनिक इकोसिस्टम है या सी इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट होना शुरू हो जाएगा। कहता है कि अगर सॉइल की ब्रिटलनेस बढ़ जाए, सॉइल की अगर एसिडिटी बढ़ जाती है तो वो जो सॉइल होता है वो ब्रिटल बन जाती है। और ब्रिटल सॉइल से यदि आप ईंट बनाते हैं ताकि हम मकान बना सकें, कहता है वो ईंट कमजोर होती है। ये कई सारे इम्पैक्ट्स हैं। एसिडिक जो जैसे मान लीजिए एसिडिक अगर हमारा वाटर हो जाए उसको अगर हम एल्युमिनियम के वेसल में रखें चाहे अगर कॉपर के वेसल में रखें तो लीचिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है, एक्सट्रैक्ट करने लगता है उस मेटल को। देखा यह गया है कि यदि एल्युमिनियम लीचिंग होती है उसके चलते किडनी की जो एलिमेंट्स होती हैं या किडनी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बढ़ती हैं, हमारी जो बोन्स होती हैं वो कमज़ोर होती चली जाती हैं। अगर कॉपर लीचिंग होती है तो देखा गया है कि खासकर बच्चों में कॉपर लीचिंग के चलते उनमें डायरिया की स्थिति बनती है, क्रॉनिक डायरिया हो जाती है उनको। तो कई सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आएंगी। हमने ताजमहल की बात करी ही कि अगर एसिड रेन होगा तो ऑब्वियसली जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारे मान लीजिए आर्टिफैक्ट्स हैं, जो हमारे मेटलिक मान लीजिए धरोहर हैं, कहीं ना कहीं उसमें रस्टिंग की प्रोसेस हो सकती है। उनका जो कलर होता है, नेचुरल कलर होता है, वो इरोड करने लगता है, जिसको हमने मार्बल कैंसर के तौर पर कहा ताजमहल के केस में। कई सारे ऐसे इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। लास्ट में केवल मैं इतना बता दूं कि जो कुछ भी यहाँ पर एसिड रेन जिस रूप में घटित हो रही है इस फोटोकेमिस्ट्री के चलते, उसमें जो मैं बोल रहा था कि क्यों स्कैंडिनेवियन कंट्री में ये सबसे ज्यादा देखी जा रही है, अगर उस चीज को समझना हो हमें तो ऐसे समझिए आप, ये एमिशन सोर्स एक तरफ और ये जो एसिड रेन की घटना घट रही है वो दूसरी तरफ। क्लाइमेटिक फैक्टर्स के चलते जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी एमिशन सोर्स से जो भी एसिडिक गैसेज निकलती हैं, चूंकि वो गैसेज है तो ऑब्वियसली दे कैन इजिली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस एंड दैट अदर प्लेस मे बी लोकेटेड फार डिस्टेंट। हो सकता है कोई हजारों किलोमीटर की दूरी पर हो, और यही कारण है कि वट एवर द डिस्टेंस इज देयर इन बिटवीन these emission sources and of course the acid rain where it actually takes place, actually this distance may be too far। और ये सब कुछ डिपेंड करता है कि ये एसिडिक गैसेस कहाँ की ओर जा रही हैं, और ये डिपेंड करता है कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या है, हवा का दबाव किधर से किधर की ओर है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो कि क्लीनेस्ट ऑफ कंट्रीज मानी गई हैं across the globe, of course they are supposed to be, the irony is that they are supposed to be the main destination of this acid rain, only because of the fact that whosoever of the emissionary sources, whosoever in terms of the countries, जो भी देश ऐसे हैं जो कि emission sources का काम कर रही हैं, जाहिर सी बात है उनका काम था, उन्होंने emission निकाल दिया। क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में है इसलिए वो गैस वहां पर स्टिक नहीं करेगी,
वहाँ पर होल्ड नहीं करेगी। क्लाइमेटिक फैक्टर्स के चलते वो धकेल दी जाती है उधर की ओर, जिधर की ओर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का लोकेशंस है, और इसलिए जहाँ भी इस तरह की जो गैसेज हैं वो क्रिएट होंगी, वहाँ पर प्रेसिपिटेशन जब भी होगी तो वहाँ पर एक्सीडेंट की घटना देखने को मिलेगी। तो एक छोटा-सा पैकेज था जिसको हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है, ताकि आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ऐसी जो भी श्रृंखलाएँ होंगी, वी विल टेक इट आउट। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।